پیچھے جی آندے نے پھر وہ بھی بیان ہے خداوند کے بندہ کو دعوت دیں گے ہاللویا کون کون خداوند کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہوا اپنے ہاتھ بلند کریں اور جو سو رہے ہیں وہ ذرا ہاتھ بلند کریں تاکہ وہ جاگیں ہاللویا کون کون سو رہا ہے کس کو نیند آ رہی ہے اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو خداوند آپ کے ساتھ ہے خداوند آپ کو ٹچ کر رہا ہے خداوند نے آپ کو ہوش میں رکھا ہوا ہے کہ آپ خداوند کے کلام کو سنیں سیکھیں اور اس پر عمل کریں خداوند کے کلام کو کون پڑھتا ہے کون کون پڑھ سکتا ہے کون کون پڑھا لکھا ہے اور جن کے پاس خداوند کا کلام ہے اگر کسی کے پاس خداوند کا کلام ہے وہ ذرا بلند کرے ہاللویا ہاللویا تو اپنے ساتھ یہاں پہ جو کلام لے کر آیا ہے یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ اپنے گھر سے خداوند کو ساتھ لے کے آیا ہے اور خداوند کے ساتھ ہی رہے ہیں ہاللویا آج چلیسوے کی عبادت ہے تو آج ہم اس سوگوار خاندان کو تسلی دینے کے لیے اور خود کو خداوند میں ڈپ کرنے کے لیے گہرا کرنے کے لیے خود کو پیش کرنے ہیں آج یہاں پہ کس لیے آئے ہیں دعا کے لیے کس کے لیے آئے ہیں دعا کے لیے ویسے تو ہم نے ٹیلی فونک یا ویسے میٹنگ کر کے ان سے افسوس کر لیا ہوگا آج خداوند کے کلام سے تسلی پانے کے لیے آئے ہیں اس گھر کو خداوند تسلی دے مل کر ہم خداوند کو یاد کر رہے ہیں کہ خداوند ان کو صبر عطا کر ہاللویا ہاللویا آئے ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں رومیو کا خط 5 باب اور اس کی 12ویں آیت خداوند کے کلام میں کیا کلم بند ہے کیا تحریر ہے رومیو کا خط 5 باب اور اس کی 12ویں آیت فوجی اوپر آ جائیں کوئی بیٹی کوئی بیٹا پڑھے پر جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا سب نے گناہ کیا بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور موت پوری دنیا میں پھیل گئی ہاللویا ایک انسان کے سبب سے کیا موت آئی ہاللویا موت آدم کے گناہ کا نتیجہ تھی کس کا آدم کے گناہ کے نتیجہ تھی سانسوں کا رک جانا موت ہے سانسوں کا رک جانا موت ہے دل کی دھڑکن کا بند ہو جانا موت ہے جسم میں سے روح کا نکل جانا موت ہے ہاللویا یہ ایک جسمانی ہے اور دوسری روحانی موت ہے دو موتیں ہیں ایک جسمانی اور ایک روحانی خدا نے آدم سے کیا کہا اگر تو جس دن یہ کھائے گا تو مرا کیا وہ مر گیا نہیں مرا وہ جیتا رہا وہ روحانی طور پر مرا جسمانی طور پر ہاللویا ہم لوگ آج سوچیں آیا کہ ہم لوگ روحانی طور پر زندہ ہیں کہ نہیں ہیں اگر ہیں تو ہم خداوند کے آئین پر قانون پر
नहीं कर रहे। हमने आज इस मेमोरियल सर्विस से कुछ सीखना है कि हम खुदावंद के साथ साथ हैं कि नहीं हैं। आया कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लायक हैं कि नहीं हैं। जरा अपनी जिंदगियों पर सोचिए। मेमोरियल सर्विस का मैन होता है कि आप जिंदगी पर सोचें, जो हयात हैं वो सोचें, जो जिंदा हैं वो सोचें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोहा ताकतवर चीज है। क्या? लोहा ताकतवर चीज है और लोहे से ताकतवर आग है, आग से ताकतवर पानी है, पानी से ताकतवर इंसान है, इंसान से ताकतवर मौत है और मौत से ताकतवर जोरवर कौन है? हमारा यीशु है, जिसने मौत को शिकस्त दी और फतेहमंद हुआ। तो आज जो मसीह के साथ है उस पर मौत का फतवा नहीं है। जो मसीह के साथ चलता है उस पर मौत का फतवा नहीं है। वो मौत से नहीं डरता, बल्कि वो मौत से गुजरकर मसीह के पास जाता है। हालेलुया। अगर वो ईमानदार है तो फिर वो मसीह के पास जाएगा। मौत से जो घबराता है, जो डरता है, वो मसीह के पास नहीं जा सकता। जो मसीह के पास जाना चाहता है वो मौत को शिकस्त दे। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन मौत से नहीं डरेगा और कहेगा कि मैं खुदावंद के पास जाऊंगा, मैं जिंदगी के पास जाऊंगा, मौत के पास कभी भी नहीं जाऊंगा। हालेलुया। कब जाएंगे? जब हम रास्तबाज होंगे, खुदाप्रस्त होंगे, खुदाप्रस्त लोग होंगे, खुदावंद के आइन पर चलेंगे, उसके एहकामात पर चलेंगे। हालेलुया। जहाँ तक किसी को समझ लगी है कि मौत क्या है, समझ लगी है, हाथ खड़े करें जरा। अगर साथ साथ रहेंगे तो फिर ही हमें और खुदावंद बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग मौत से नहीं डरेंगे। ये जुदाई है। ये क्या है? जुदाई है। जो जुदाई है ना वो सॉल्व हो जाती है। आगे जाके कहीं ना कहीं जाके हम मिलेंगे तब। अगर देखें, मेरी बात सुने, यीशु मसीह को किसी ने देखा है? आप में से किसी ने देखा है? एलिया को किसी ने देखा है? यूहन्ना को किसी ने देखा है? रसूलों को किसी ने देखा है? सिर्फ सुना है, सुना है। तो आप मुलाकात करना चाहते हैं कि मेरी बुजुर्गा की तरह रोज रोती हैं, रोज रोती हैं। अगर ये मुलाकात करना चाहती हैं, रास्तबाज बनना चाहती हैं, तो फिर बड़ा क्या होगा? अगर ये रास्तबाज मसीह से मिलना है, अगर इन्होंने किसी रास्तबाज इंसान से मिलना है, अगर अपने बेटे की जुदाई को भूलना है, तो खुदावंद के आयन को याद करें और यकीन रखे कि मैंने एक दिन जाके उससे मिलना है, एक दिन जाके मिलना है। और याद रखें, जब हम लूका 16 बाब पढ़ते हैं तो यहाँ वहाँ पे एक जिक्र आता है, हम सुनते रहते हैं। अमीर आदमी और गरीब लाजर। ये देखें ना, जो सुनते हैं, गौर करते हैं, उन्हें याद रहता है। तो कौन उसके पास गया था? अब्राहम के पास कौन गया है? गरीब आदमी, नसूरों से बड़ा हुआ, दुखों से, मुसीबतों से वो बड़ा हुआ था। और खुदावंद के पास वही जाता है, ईमानदारों के पास वही जाता है, वही देखते हैं जो ईमानदार होते हैं। हालेलुया। आज जो ईमानदार बनेगा, आज एक बात मेरी सुन लें कि खुदावंद के कलाम में जरा गौर करें और इसे अपनाएं और देखें कि वहां पे कैसे गया है।
वो ईमानदार था तो गया है ना ईमानदारों के बाप के पास। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मसीह के साथ में मुलाकात करूं, मैं फलां नबी को देखूं, मैं फलां रसूल को देखूं, मैं फलां शख्स को देखूं जो रास्तबाज था, तो उस जैसे काम भी करना शुरू करूं। हालेलुया। कौन कौन ऐसा करेगा कि मैं खुदावन तुझे देखना चाहता हूँ, चाहती हूँ खुदावन खुदा कि मैं तेरा दीदार करूँ। जब दीदार तब ही होगा ना जब उस जैसे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे और किरदार अच्छे होंगे, फेल अच्छे होंगे, आदतें अच्छी होंगी और सोच अच्छी होंगी। हालेलुया। कौन कौन जाना चाहता है कि मैं खुदावन के पास जाऊँ? सब जाना चाहते हैं, मुझे भी शौक है, मैं भी कहता हूँ कि मैं खुदावन के पास जाऊँ। जैसे पौलुस रसूल कहता है कि मैं मसीह के पास जाऊँ। हालेलुया। 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 हम फिक्र करते हैं मेरा बेटा चला गया है, अब घर का निजाम कैसे होगा, कैसे हमारा गुजर बसर होगा, बाप चला गया है, माँ चली गई है, बेटा चला गया है। वो आप उसको प्यार करते हैं, उसके गम में रोते हैं, उसके गम में रोते हैं। कभी आपने ये कहा है कि खुदावन जो जिंदा हैं, जो इस दुनिया में अभी हयात हैं, खुदावन उनको तू बरकत। हम जितना रोने जो मर गया है उसके लिए रोते हैं, जो जिंदा है उसके लिए करें तो वो बहुत ही अजीज हो जाएगा। हालेलुया। आप जो जिंदा हैं उनकी फिक्र करना शुरू करें तो आपको वो जुदाई जो है ना वो महसूस नहीं होगी। हालेलुया। तो आपके पास बेटे हैं, बेटियां हैं, उनकी फिक्र करनी शुरू करें तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि खुदावंद आपको तसल्ली देगा। हालेलुया। हालेलुया। और इस उम्मीद पर रहे कि हमने एक दिन जाके मिलना। हालेलुया। हालेलुया। तो हम मौत को क्या करें? मौत को अपनाने की कोशिश ना करें, मौत को अपनाने की कोशिश ना करें, बल्कि जिंदगी को अपनाने की कोशिश करें। क्योंकि जिंदगी को अपनाएंगे, जो जिंदगी को अपनाता है वो मसीह को अपनाता है, जो मौत को अपनाता है वो गुनाह को अपनाता है। हालेलुया। हालेलुया। हमने मौत को अपनाना नहीं बल्कि जिंदगी को अपनाना है। हालेलुया। मौत एक नींद है, मौत एक नींद है। मौत ईमानदार को भी आनी है और बेईमान को भी आनी है। किन को आनी है? ईमानदार को भी आनी है और बेईमान को भी आनी है। और जब इंसाफ होगा तो सभी उठेंगे, सब जागेंगे। हालेलुया। आइए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ें दानिएल 12 बाब और उसकी दूसरी आयत। खुदावंद के कलाम में क्या मरहूम है, क्या कलमबंद किया गया है। दानिएल का सहीफा उसका 12 बाब और उसकी दूसरी आयत। खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है कि जो खाक में सो रहे हैं, जो खाक में कब्रिस्तान में जाके देखा है कि ये ईमानदार की कब्र है कि ये गुनाहगार की है, ये तो रोज़े क़यामत वाले दिन पता चलेगा कि ये किधर जाता है, ये फरदौस में जाता है कि दूसरे आगे। और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे और बाद हयाते अब्दी के लिए और बाद रसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए, जिल्लते अब्दी के लिए। हालेलुया। और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठे थे, बाज हयाते अब्दी के लिए और बाज हयाते। हालेलुया। कौन कौन आबे हयात में जाना चाहता है? आबे हयात का पानी पी चुका है, खुदावंद के साथ रफ़ाकत रख चुका है, जो खुदावंद के पास आ चुका है, वो गुनाहों से तौबा कर चुका है और वही हयाते अब्दी के वारिस हैं। हालेलुया।
कौन कौन तो अपने गुनाहों से किनारा कशी कर चुके हैं? हालेलुया। ये बहू साहबान, ये खातमीन, ये सबसे पहले तौबा का अमल करवाते हैं। हालेलुया। कौन तौबा का अमल करवाते हैं? किसने तौबा की होती है? कौन कौन तौबा करता है? हाथ खड़े करके मैं तौबा करता हूँ। डेली हमें जो तौबा करवाते हैं, हम लोग अमल नहीं कर रहे, हमें कोई कमी कमजोरी। हालेलुया। जो तौबा कर चुके हैं वही जिंदगी के वारिस हैं। हालेलुया। कौन कौन जिंदगी का वारिस बनेगा? कि मैं खुदावंद जो मेरे खातमीन कह रहे हैं, मैं उनके कहे पर अमल कर रहा हूँ, अमल कर रही हूँ। हालेलुया। 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 मौत क्या है? मौत क्या है? मौत का किसी को पता नहीं है। हम लोग जिंदगी गुजारते हैं, जैसी मर्जी गुजारें, अच्छी गुजारें, बुरी गुजारें, हमने जिंदगी गुजारनी है। बात लोग हैं जो खुदा से दूर हैं, उनको नहीं पता कि मौत क्या है। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 5 बाब और उसकी 28 आयत से लेकर 29 आयत तक 2 वर्सेस। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 5 बाब और उसकी 28 और 29 आयत। इससे ताज्जुब ना कर, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उनकी उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। हालेलुया। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। हालेलुया। हालेलुया। बात लोग आपने सबने देखा, मेरा भी तजर्बा है, आपका भी तजर्बा है। जब मैयत को उठाने लगते हैं ना, तो ना बहन को यकीन है, ना भाई को यकीन है, ना रिश्तेदार को यकीन है। भला क्या कहती हैं? उठ मेरा भरा, उठ मेरे भैन, उठ मेरा प्यो, उठ मेरे अजीज। कभी उन्होंने यकीन नहीं ना हुंदा वे। जो उन्होंने यकीन नहीं हीगा ते मर गया होवे तो फिर ही कहंदे ने ना उठ। ऐसे ही कहंदे ने ना, ते की ओदी वास्ते उठ जांदा, उठदा वे। यकीन करो कि उस दिन उठेगा जिस दिन रोजा क़यामत होएगा। मसीह की पहली आवाज के सारे हालेलुया। हालेलुया। जब उठन गए हो जड़े मसीह दे विच। हालेलुया। किस किस का यकीन है कि मेरा मसीह आवाज देगा तो सारे ईमानदार उठ जाएंगे? हम आवाज लगाएंगे तो नहीं उठेगा, मसीह आवाज लगाएगा तो उठ जाएगा। याईर की बेटी को क्या कहा कि ये सो रही है। हालेलुया। और जब लाजर को जिंदा करने के लिए जा रहे तो अपने शिगिर्दों से क्या कह रहा है कि लाजर सोया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। वो मरा नहीं कहता। हमारा यकीन क्या कि हम लोग कहते हैं कि मर गया है, और जो ईमानदार लोग हैं वो कहते हैं कि सो गया है। जो सो जाता है उसकी उम्मीद होती है कि वो उठेगा। हालेलुया। 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 तो कौन कौन आज से यकीन करेगा कि मेरा मसीह जो है आवाज लगाएगा तो मैं हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करूंगा, करूंगी। तो करेंगे वही जो मसीह में होंगे, जो ईमानदार होंगे, जो खुदा की राहों पर चलेंगे और जो खुदा को मानते होंगे। हालेलुया। हालेलुया। यकीन बड़ा है कि नहीं बड़ा? किन किन का यकीन बढ़ गया है? किस पर यकीन बढ़ा है? अगर यकीन बढ़ गया है तो फिर रोज ना रोया करें। यीशु मसीह जिंदगी देने के लिए आया है,
रोते वो हैं जो कमजोर होते हैं, हमारा खुदा जोर उठाने वाला है। तो इस जमीन पर खुदावंद से कहें कि खुदावंद मेरा यकीन है, मैं आज से खुदावंद ना रोऊंगी, क्योंकि खुदावंद खुदा असल तसल्ली तू ही देने वाला है। मुझे खुदावंद खुदा तू ही छेड़ देगा, तू ही मुझे सही। हालेलुया। हालेलुया। पहला क्रंथियों पहला तस्लीकियों 4 बाब और उसकी 14वीं आयत बेटा पढ़े। चार बाब और उसकी 14वीं आयत। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के जिंदा से उसी के साथ आएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह मुआ, जी उठा, आसमान पर चला गया, और जब जाने लगा तो 2 फरिश्तों ने क्या कहा कि जिस तरह ये गया है फिर दोबारा वापस आएगा। तब आएगा जब हमारा इंसाफ करने के लिए, हालेलुया, हमें साथ ले जाने के लिए, हालेलुया। तो उसने कहा है कि मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, मकान तैयार करता हूँ, हालेलुया। तो कौन कौन मकान चाहता है? यहाँ पे तो घर में भाई भाई को मकान ना दे तो लड़ाई करते हैं, करती है ना लड़ाई। तो वहां पे वो तैयार कर रहा है, तो कौन हासिल करेगा? सारे हासिल नहीं करेंगे, वही हासिल करेंगे जो खुदा के चाहते हैं, जो प्यारे हैं, हालेलुया, जिसके साथ उसका तल्लक है, रिश्ता है। आज से कौन कौन खुदावंद के साथ अपना तल्लक रिश्ता बनाएगा और कहेगा कि खुदावंद मुझे जरूरत है, मुझे खुदावंद जरूरत है, जो मकान तूने मेरे लिए बनाने के लिए वादा किया खुदावंद, खुदा मैं उसे चाहता हूँ। तो मिलेगा उसे जो खुदावंद से प्यार करता है, जो खुदावंद के साथ साथ करता है, हालेलुया, हालेलुया। मौत एक रवानगी है। क्या है? मौत एक रवानगी है। आइए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ें फिलिप्पियों का खत, उसका पहला बाब और उसकी 23वीं आयत। जब पौलुस रसूल देखें क्या कहता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है और हम कौन कौन सी चीजों की ख्वाहिश में है। फिलिप्पियों का खत पहला बाब और उसकी 23वीं आयत। जरा गौर करिए, जरा गौर करें। कि मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूँ, मेरा जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जाकर रहूं, क्योंकि ये सब ही बहुत ही बेहतर है। हालेलुया। गौर करें जरा, मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूँ, मेरा जी तो ये चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। हालेलुया। पौलुस रसूल कह रहा है कि मेरा जी चाहता है कि मैं कहाँ पे जाऊं? खुदा के पास जाऊं, यीशु के पास जाऊं और मैं वहाँ पे जाकर रहूं। हालेलुया। आज हम क्या कहते हैं? वो तो कहता है कि मैं मसीह के पास जाके रहूं, हालेलुया। और हम क्या कहते हैं? मैं अमीर हो जाऊं, मेरा घर बड़ा हो जाए, मेरे पास गाड़ी बड़ी आ जाए, मेरे पास दौलत आ जाए। मैं चाहता हूँ लोग मुझे सलूट मारे, मुझे सलाम करें, मैं एहतराम
करें, मेरा अदब करें। और पौलुस रसूल क्या कहता है कि मैं फंसा हुआ हूँ, मेरा जी तो चाहता है कि मैं यीशु के पास जाऊँ, मसीह के पास जाऊँ। आज किस किस का जी कर रहा है कि मैं यीशु के पास जाऊँ? कौन कौन कहता है कि मैं यीशु के पास जाऊँ? ये ख्वाहिश ना रखें कि मुझे लोग सलूट मारे, मुझे मेरा आगे आगे झुके। हालेलुया। तो जब हम लोग खुदावंद के पास जाने के लिए तैयार होंगे तो बरकत भी, शोहरत भी मिलेगी, आपको बहुत सारा मुकाम मिलेगा। हालेलुया। आज से कौन ऐसा नहीं करेगा कि मुझे सलूट मिले, मुझे इस्लाम इस्लाम हो, ये कहें कि खुदावंद तुम मुझे, जैसे पौलुस रसूल कह रहा है कि मेरा जी तो चाहता है कि मैं मसीह से मिलूं। हालेलुया। क्योंकि वो दुनियादार भी था, तो कह रहा है कि मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूँ, दोनों तरफ। तो मेरा जी तो चाहता है कि मैं जाऊं यीशु के पास। अभी मेरा वक्त नहीं आया, अभी मैं छोड़कर नहीं जा सकता। जब तक मेरी सांसें खुदा ने मुझे दी हुई हैं, मैं इन्हें छोड़कर यीशु के पास नहीं जा सकता। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खुदावन से गिला शिकवे करने शुरू कर देते हैं कि खुदाया तूने ऐसे क्यों कर दिया, जबकि खुदावन का बंदा कह रहा है मेरा भी जी चाहता है कि मैं यीशु के पास जाऊं। हालेलुया। दूसरे नंबर पे ये जो बहनी हैं, जो भाई हैं, खुदावन की मर्जी थी कि इस दुनिया आने से भाई मैकल ने कूच करना था। खुदावन की मर्जी थी तो खुदावन ने उसे अपने पास बुला लिया। अब जो आपके पास जिंदगी है उसका खुदावन के पास शुक्र करें और कहें कि खुदावंद मैं तेरे पास आऊंगी जब तू, मैं आऊंगा कि जब तू मेरी खुदावन खुदा हद्दों को खुदा पूरा। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले खुदावन का यकीन करना है, खुदावन को मानना है और उसकी दिव्य अहकामात को क्या है? तस्लीम करना। कौन कौन तस्लीम करेगा? आज हम तसल्ली देने के लिए आए हैं। आज सबसे बड़ी बात है, हम तसल्ली देने के लिए आए हैं। कौन कौन तसल्ली देने के लिए आया है? आज से 1 मिनट के लिए इस कराना के लिए सब मिलकर दुआ करें। कहते हैं कि खुदावंद इनको तसल्ली दे। मैं जब घर से निकला हूँ तो इसलिए निकला हूँ कि खुदावंद इस घर को तसल्ली मिले, खुदावंद इस घर को इत्मीनान मिले, इस घर को सुकून मिले, इनको चैन मिले। खुदावंद खुदा इनकी खलाफ पूरी हो, खुदावंद खुदा तेरा जलाल जाहिर हो और खुदावंद खुदा इनको सब्र मिल जाए, तेरी तरफ से सब्र मिल जाए खुदावंद खुदा। क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं तो इसलिए निकलते हैं कि इस घर को तसल्ली दे। खुदा हमसे दुआ करें ताकि खुदा हम इनको तसल्ली दे, इत्मीनान दे, सुकून दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम में से पढ़ें। खुदा का कलाम हमें क्या बताता है, हमें क्या दर्श देता है। आखिरी हवाला लूका कभी की किताब उसका 23 बाब और उसकी 43 आयत। हालेलुया, हालेलुया। जो यकीन करेगा वही खुदा के पास जाएगा, जो यकीन करेगा वही खुदा के साथ साथ रहेगा। जहाँ पे यीशु होगा वहाँ पे उसके लोग होंगे, वहाँ पे उसकी कलीसिया होगी। लूका 23 बाब और उसकी 43 आयत। उसने हाँ जी, उसने उसे कहा, तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ दोस्त। हालेलुया, हालेलुया। उसने खुदा का यकीन किया तो खुदावन ने क्या किया? यीशु ने उसे क्या कहा? डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ। हम लोग यहाँ पे अदालतें शुरू कर देते हैं, गुनाहगार और नेक बनाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ये सही है, ये सही नहीं है, ये गुनाहगार है, ये बुरा है। हम
अदालतें यहाँ पे लगा लेते हैं और खुदावंद जो अदालत लगाने का उसको भूल जाते हैं, अपने आपों को भूल जाते हैं और दूसरों को छालना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। आज एक चीज याद रखनी है, ईमान के साथ कहें। बहुत लोग हैं वो कहते हैं जी हमने तौबा नहीं की, हमने खुदावंद को नहीं अपनाया। जब आप अपनाएंगे, इकरार करेंगे तो फिर ही आप फरदौस के मालिक होंगे। आज से कौन कौन कहेगा कि खुदावंद मैं तेरे साथ रहूंगी। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन इकरार करेगा? हाथ खड़े करके जाएंगे, खुदावंद मैं इकरार करता हूँ। और ये सोगवार खानदान भी कहे कि खुदावंद मुझे तेरे कलाम से तसल्ली मिल गई है कि पलूस कह रहा है कि मैं मसीह के पास जाना चाहता हूँ। हालेलुया। जब मेरा वक्त आएगा तो मैं तभी ही जाऊंगा। जब भी आज हम कहें कि खुदावंद मैं मान गया हूँ, मैं तेरे आइन को सीख गया हूँ, कि खुदावंद जब वक्त आएगा तू अपने वादा के मुताबिक खुदावंद हमें क्या करेगा? अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। 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 ईमान के साथ आज कहें कि मैं खुदावंद, मेरे साथ साथ कहें ईमान के साथ, मैं खुदावंद आज तेरे कलाम को, तेरे आइन को, तेरे हुक्मों को मान गया हूँ। जो खुदावंद खुदा तेरे कलाम में से हमने सीखा है वो खुदावंद खुदा सच्चा और अटल है। आज से हम लोग परेशान नहीं होंगे और खुदावंद खुदा हम सारी फिक्रें तुझ पर छोड़ देंगे। हालेलुया। यकीन जाने कि हमारी सारी फिक्रें खुदावंद को उठा लेगा। हालेलुया। आज से खुदावंद को दोष नहीं देना, कि ये बाद लोगों को दोष देना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। खुदावंद जो करता है वो हालेलुया। आज हमने एक चीज यहाँ पे आके सीखी है कि खुदावंद हमारा भला चाहता है। खुदावंद हमारा भला चाहता है। आज जो जो भलाई चाहता है, जो जो खुदावंद के आइन पर चलना चाहता है, वो वादा करे, हाथ उठाकर कहे कि आज भाई माइकल के मेमोरियल सर्कल पर मैं वादा करता हूँ कि खुदावंद खुदा मैं तेरे आइन पर अमल करूंगी और तौबा करूंगी और इसी तरह खुदावंद खुदा मैं अपने गुनाहों को तरक करता रहूंगा, तरक करती रहूंगी और तेरे जलाल को देखूंगा और देखूंगी। हालेलुया। और जिस तरह खुदावंद खुदा तूने अपने लोगों को खुदावंद खुदा अपने पास बुलाया हुआ है और खुदावंद खुदा जिस तरह लाजर को तूने खुदावंद खुदा अब्राहम की गोद में जगह दी है, मेरा यकीन है कि हम भी खुदावंद खुदा वहाँ पे मौजूद हैं तेरे तख्त के पास से, क्योंकि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, तेरे अजीज हैं, तेरे दोस्त हैं, तुझे प्यार करते हैं, तू हमसे प्यार कर। हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग कुछ सीखें, इस मेमोरियल सर्विस से कुछ सीखें। हम वैसे बैठने के लिए नहीं आए, हम कुछ सीखने के लिए आए। खुदा के कलाम में से कुछ सीख के जाएं तो खुदा हमें बता दे। मेरी तरफ से सबको सलाम, सोबत खानदान को खुदा तसल्ली दे, इत्मीनान दे और जितने दूर दराज से आए हैं उन सब की खुदा हिफाजत करे। मैं बात आप खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी और सारी बर्बाद ये तेरी आला मर्जी थी कि तूने भाई मैकल को